This is kind of a popular tale in Lucknow. It's about a hospital. I don't know if some of you might have heard it. So, there's this hospital in Lucknow. It's called Balrampur Hospital. It was built काफी पहले, around 1870. So, it was used to heal British soldiers and common people and everything. It was a dispensary at first, but then it was turned to a hospital. A lot of the hospital staff and patients have reported mysterious operations and seeing people, shadows everywhere. So there's this one incident which was told to be by my friend's elder sister. So she used to work, uski tuition teacher used to work as a nurse in this Balrampur hospital. Uski night shift thi. And there was an accident suddenly at around 1:32. So there was this girl who was in this accident, and she was admitted, but there were no surgeons. It's like a government hospital, and so there were no surgeons at that point of time in the hospital. So she was just admitted there, and nurses were taking care of her. But suddenly, she saw that nurse, she saw from behind the reception desk that operation theater बंद था पूरा, curtains भी drawn थे, और but she could see shadows of like two people inside. She could see someone doing something there. कोई आवाज नहीं आ रही थी और कुछ दिख भी नहीं रहा था, बस शैडो दिख रही थी कर्टन से, लाइट की वजह से, कि दो लोग हैं और वो अंदर they are doing some kind of operation on the person. Obviously she was shit scared. It was 2-3 a.m. at night, so she did not dare to check. There were other people in the hospital who saw that too, matlab other nurses and some people who worked there, they saw that too, but because they know about all of these things, they did not check. She could see that they were kind of tall men, she said, who had kind of blonde hair, so they were reportedly British. When the next morning, when they checked the operation theater, that girl was operated, like she was completely fine. And the surgeons came in next day and they were asked that, did you come last night? Ya kya hua tha? And no, like there were two surgeons at that time, this hospital mein, and they said that we did not come. मतलब वो उस दिन के बाद पहली बार सुबह हॉस्पिटल आए थे. So like yeah, definitely it was something. So my name is Sarah and I am pursuing BDS. ऐसा हुआ था, like ठंड का वक्त था. Me and my friend were going. I was wearing a quite thick layer of jackets and he wasn't wearing. So ऐसा हुआ था कि वो मेरी एक्टिवा चला रहा था. So I just told him, ऐसा करो, रुक जाओ, मैं चला लेती हूँ. मेरे घर के पास में ना एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लिटरली बहुत बड़ी. उसमें आधा तो जंगल ही आता है. ठीक है, तो हम एक पेड़ के नीचे रुके और उस पेड़ के नीचे हमने एक्सचेंज किया. लाइक वो पीछे बैठा, मैंने आगे बैठ के चलाया. थोड़ी दूर हम गए, वहां एकदम ड्रॉप डेड ब्लैक अंधेरा था लिटरली. हम थोड़ा आगे गए, मैंने कहा यार समथिंग डजंट फील राइट, मतलब कुछ अजीब है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है. बोलता है हाँ सेम चीज. मैंने कहा चलो उस चीज पे अपन ध्यान नहीं देते हैं, ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देते, अपन चलते हैं. फिर लाइक ओके चलो चलते हैं. हम लोग जाके डिनर करके वापस घर आए. हम लोग सो गए रात में, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था. देन अराउंड रात के 2 सवा 2 बज रहे होंगे. आई हैड अ ड्रीम दैट अ लेडी इज स्टैंडिंग राइट आउटसाइड द डोर ऑफ माई फ्लैट. मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसका फेस कैसा था, पर उसकी शक्ल को देख के डर लग रहा था. वो मेरे डोर को बैंग कर रही है, लाइक शी वांट्स टू कम एंड लाइक शी इज ट्राइंग कि मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो. बट समहाउ मैं उठ गई. मैंने बोला चलो इट वाज जस्ट अ बैड ड्रीम. विद इन फ्यू सेकेंड्स मेरा फ्रेंड उठता है. आई आस्क्ड क्या हो गया? सर आई हैड अ ड्रीम. मैंने कहा क्या ड्रीम है? ही एक्सप्लेन्ड द सेम ड्रीम दैट आई सॉ समवन सिटिंग आउटसाइड द डोर. मैंने कहा जस्ट सिटिंग. वो said कि नहीं, she wanted to come in.
मैंने कहा इट वॉज अ लेडी। ही सेड हाँ। मैंने कहा आई हैड द सेम ड्रीम। हम लोग लिटरली उस रात नहीं सोए। मैंने थोड़ी बहुत आयतल कुर्सी, थोड़ी बहुत सूरतें रिसाइट की। उसके बाद हम लोग दोनों सो गए कि चलो मत सोचो इस चीज के बारे में, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। इट वॉज ऑल ओके, मेरे लिए सब कुछ ठीक था, मुझे कुछ नहीं हुआ। बट कुछ मंथ्स बीत गए। he was he was still seeing that lady some places। हम कहीं भी जाते कुछ भी करते, उसने कुछ महीने बाद मुझे बताया, क्योंकि कुछ महीने बाद हमने ऐसी बात निकाली कि यार उस दिन क्या हुआ था, अब अपन उस रास्ते से नहीं जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो बोलता है यार सी मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी, बट आई एम स्टिल सीइंग दैट वुमन। आई वाज लाइक डूड आर यू क्रेजी, तुम मुझे बताते तो सही हुआ क्या था, मतलब अगर कहीं दिखती थी या कुछ ऐसा होता था तो तुम मुझे बताते, तुम मुझे बोलते। ही सर आई थॉट मे बी मेरा सिर्फ दिमाग का वहम है या कुछ है, बट मुझे बहुत सारी जगह वो दिखती थी। तो आई जस्ट आस्क्ड समबडी इन आवर हाउस, तो ही टोल्ड मी टू वर्स, सम वर्स और सूरत आई माइट से, वो पढ़ के उसके ऊपर फूको, उसको फूक के पानी पिलाओ, इट विल ऑल बी ऑल राइट। सो या थैंकफुली इट्स ऑल गुड नाउ। बट या आई एम शेकिंग, मुझे वो ड्रीम याद करके अभी भी गूज बम्स आता है। कल्चर में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान अपने ही घर पे अपने ही रूम में अपनी बॉडी छोड़े तो उस रूम को एटलीस्ट 13वीं तक मतलब अबेंडन नहीं कर देना चाहिए, किसी ना किसी को उस रूम में रहना चाहिए और उसी रूम में सारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं, जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं या फिर जो भी पूजा वगैरह होता है उसी रूम में होता है। तो मेरी दादी थी तो मैं अपनी दादी के साथ ही उसी रूम में रह रही थी। मैंने सोचा कि 13वीं के साथ वो अकेली कैसे रहेगी, तो मैं रहूँगी उनके साथ। तो एक रात मैं सो रही थी, तो शायद वो कुछ 8वां या 9वां दिन होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मैं सो रही थी और मेरे सोते टाइम पे आई वॉज इन डीप स्लीप, मतलब मैं पूरी सोई हुई थी। फिर मुझे फील हुआ कि कोई मतलब आके मेरे सर पे अपना हाथ हाथ रब कर रहा है, जो यूजुअली करते हैं ना बड़े लोग कि छोटे सो रहे होते हैं तो ऐसे जस्ट रब दे हेड, लाइक हैंड अराउंड अ हेड। एंड इट वॉज अ वेरी कूल फीलिंग, लाइक हाथ शायद बहुत ठंडे हैं। तो मुझे फील हो रहा था कि किसी ठंडे हाथ से बार बार मेरे सर को कोई रब कर रहा है 2-3 बार। तो फिर मेरी नींद टूट गई। मैं उठ उठ के मैं इधर उधर देखने लगी, रूम में कोई भी नहीं था। तो मुझे डर लगा पहले। फिर मैं उठ के गई, मैंने अपने दादी और मेरे पापा से पूछा जो लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे, और मेरी मम्मी अपनी बेडरूम में सो रही थी। तो मैंने उनसे जाके पूछा कि किया कि मेरे रूम में कोई आया था क्या अभी। तो दादी और पापा ने मना कर दिया, नहीं हम तो नहीं आए और तेरी मम्मी तो सो रही है। फिर पर मुझे पूरा याद था कि वो सपना नहीं था, क्योंकि मेरे को लिटरली फील कि किसी ने मेरे और मेरे दादाजी अक्सर वो करते थे कि मैं सो रही हूँ तो वो मेरे कमरे में आते थे, तो ऐसे ही मेरे सर पे हाथ रख के जाते थे। तो वो एग्जैक्ट फीलिंग थी, पर वो हाथ ठंडे थे, बहुत ठंडे थे। मुझे लाइक अभी भी मैं सोच रही तो मुझे गूज़बम्प आ रहा है। तो मुझे नहीं पता वो क्या था, सपना तो शायद था नहीं, मुझे नहीं लगता कि सपना था। तो वो एक एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ में जिसका जवाब मुझे नहीं पता आज तक, पता नहीं वो क्या था, पर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था मुझे।